Now I welcome to the guiding light of our institution, our respected principal ma'am, Professor Namnita Christ ma'am. Just like today's theme, ma'am always inspire us to spread positivity and stress. Please do welcome for our ma'am. Now I welcome to our respected faculty members. You all are the pillars of this Arogyam family, shaping our thoughts, nurturing our minds, and giving us the courage to face challenges with hope. Please do welcome to our respected faculty members. And the heart of our institution, our beautiful faces, dear students, you all are the real strength and future of this Arogyam family. Welcome to each and everyone on this session. So just like awareness is a light, light is awareness, removes ignorance, as a light always removes darkness. So I would like to invite honorable guest, principal ma'am and all the faculty members, kindly come forward and light the lamp of knowledge and positivity. Mrs. Seetal ma'am, Assistant Professor at Arogyam Nursing College, kindly come on the stage and address our guest. It is my pleasure to address ma'am. Professor Chetna ma'am is working as a principal at College of Nursing combined with PG Institution of Medical Science and Research at Dehradun. Ma'am has completed her BSc Nursing in 2007 from CMS Ludhiana in First Division. She has completed her Masters in Mental Health Nursing in the year of 2014 from Himalayan College of Nursing, SRHU, Dehradun in First Division. Ma'am is also pursuing PhD in Nursing Science from Himalayan University. Ma'am has various publications in international journal. Ma'am has also done poster presentation and oral presentation in 27th Annual National Conference of Nursing Research Society of India in 2023. Ma'am has organized and attended multiple state, national and international level conferences and workshops. Ma'am is accomplished and dedicated nursing professional with exclusive experience in teaching, administration and clinical supervision. Ma'am is committed to nurturing competent and compassionating nursing profession for today's dynamic nursing care environment. We are glad to have you among us, ma'am. Your pleasure and your presence have given an enlightening for our today's workshop. Welcome you, ma'am. Good afternoon, everyone. Good afternoon. Okay, so कौन सी क्लास यहाँ पे बैठी है एक बार जरा बता दें मुझे. कोई भी एक बच्चा बीच में से अपने ग्रुप में खड़े होकर बता दे कौन से ईयर के बच्चे यहाँ पे हैं. BSc third year, first year and second year, और BSc first year. Semester तो बता. ठीक है, very good. Semester is there. Second semester. Okay. So why did I ask this? आप लोग जितने भी बच्चे यहाँ पे बैठे हो या तो आप साइकोलॉजी पढ़ रहे हो, है ना, या फिर मेंटल हेल्थ पढ़ रहे हो या पढ़ चुके हो, है ना, ऐसा ही है. वेरी गुड. तो मैं जो भी बच्चों यहाँ पे बात करूंगी ना, हम लोग मतलब मैं आपको पढ़ाऊंगी नहीं, मैं चाहती हूँ कि हम लोग डिस्कस करें, कुछ चीजें आपकी तरफ से आए. ओके, ऐसा ही करें या फिर वन में क्लासरूम टीचिंग डिस्कशन, है ना. यस. ओके, तो आज क्या है? वर्ल्ड
सुसाइड प्रिवेंशन डे क्यों मनाते हैं या क्यों हम यहाँ पे आज सब है इकट्ठा है? सिर्फ इवेंट करने के लिए या कुछ और चीज के लिए? अवेयरनेस के लिए। और क्या हो सकता है? हाँ, यस यस। मैम आज जो डे है वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे, आज हम सब इसलिए इकट्ठा हुए हैं ताकि हमें अवेयरनेस, आपके थ्रू हमें अवेयरनेस मिलेगी, हमें नॉलेज मिलेगी किस तरीके से हमें स्ट्रेस मैनेजमेंट या और किस तरीके से हमें चीज़ों को मैनेज करना है और अपनी डेली लाइफ को एक स्मूथली वे में हमें क्या चलाना है। यस, वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। व्हाट्स योर नेम? निकर निगर। अच्छा बेटा, वेरी गुड, वेरी नाइस आंसर। तो जो भी हम डेज मनाते हैं ना बच्चों को इसीलिए मनाते हैं कि थोड़ा अवेयरनेस आए, सिर्फ इसलिए नहीं कि एक इवेंट करना है हमें करके खत्म करना है। आप लोग को सबको यहाँ पे बिठाया है, सबने इतनी मेहनत से ये सब ऑर्गेनाइज किया है, इसीलिए किया है कि आप लोग कुछ तो आज दिमाग में लेके जाओ, कुछ तो आज घर लेके जाओ, नया कुछ मैसेज, है ना? तो उसी के साथ शुरू करते हैं। मैं जो बात करूंगी वो सुसाइड के आसपास है, सुसाइड प्रिवेंशन के आसपास है। उस पर ज्यादा ध्यान नहीं देंगे, ठीक है? नहीं तो बोर हो जाओगे, है ना? अच्छा, किन चीजों पे बात करेंगे? एक तो वार्निंग साइंस पे बात करेंगे। अगर किसी पेशेंट को किसी आपके आसपास कम्युनिटी में या आपके किसी फ्रेंड को, आप कॉलेज में किसी बच्चे को, किसी को भी, एनीवन, अगर कोई सुसाइडल थॉट्स आ रहे हैं तो उसके वार्निंग साइंस क्या होंगे? वार्निंग साइंस मतलब कुछ ऐसी चीजें जो हमें बताती है कि हाँ कुछ गड़बड़ है, ठीक है? दूसरा हम बात करेंगे मिथ्स और फैक्ट्स को लेकर। कुछ ऐसी चीजें होती है ना जो हम कहते हैं कि नहीं ये ऐसा होता है, नहीं ऐसा नहीं होता है। तो सुसाइड को लेके भी बहुत सी ऐसी चीजें हैं, कुछ मिथ्स हैं, कुछ फैक्ट्स हैं, एंड इन दी एंड जो एंड वाला चीज है उसको हम नहीं छोड़ सकते, रोल ऑफ मिथ्स, वो जरूरी है ना? वो जरूरी है। तो वार्निंग साइंस, सबसे पहले वार्निंग साइंस। तो आप में से कोई बता सकता है? सामने एक इमेज भी है जो भी आप लोग देख पा रहे हो। वार्निंग साइंस अभी तक आपने जो पढ़ा है, या देखो आजकल के टाइम पे क्या है, कौन कौन प्रोन है सुसाइड थॉट्स, किस किस को सुसाइडल थॉट्स आ सकते हैं? क्या पेशेंट्स को आएंगे या फिर क्या स्टूडेंट्स को आएंगे? किसको आएंगे, किसको आ सकते हैं? यस, बच्चों बातें नहीं करेंगे प्लीज प्लीज। यस, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। एक जरा गिव हर अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज। ठीक है, तो अगर हम सुसाइडल थॉट्स की बात करते हैं तो ऐसा नहीं कि सिर्फ हमारे जो पेशेंट्स हैं जो मेंटली इल हैं उनको ही आ सकते हैं, क्योंकि अब देखा जाए तो स्ट्रेस बहुत तरीके का हो गया है और बहुत ज़्यादा बढ़ गया है आज के टाइम में। चाहे वो छोटा बच्चा है या फिर कोई एडोलेसेंट है, कोई 10वीं 12वीं का बच्चा है, या आप कॉलेज लाइफ के कोई स्टूडेंट्स हैं। ओके, सो बिकॉज स्ट्रेस इज राइजिंग, स्ट्रेस काफी तरीके का हो चुका है और कई जगह लेवल तक बढ़ चुका है, हर कहीं, छोटे बच्चे से लेकर एल्डरली तक। तो हम ये नहीं कह सकते कि किसी पर्टिकुलर पॉपुलेशन में ही हमें सुसाइडल थॉट्स मिलेंगे, कहीं पे भी किसी को भी सुसाइडल थॉट्स आ सकते हैं, डिप्रेसिव सिम्टम्स आ सकते हैं। ओके, तो बहुत जरूरी है एज अ नर्स हम सबके लिए ये जानना कि व्हाट आर द वार्निंग साइंस, कौन से ऐसी साइंस हैं जिनको आप जल्दी पहचान सकते हो। तो अब बताओ, कुछ बता सकते हो आप लोग? एनी वार्निंग साइन आपको लगे कि आपके साथ वाले बच्चे में या आपके पड़ोस में या आपके पेशेंट में आप देख सकते हो? यस, चेंज इन बिहेवियर, चेंज इन बिहेवियर, वेरी गुड। चिड़चिड़ापन आ जाता है मैम। यस, इरिटेबल हो जाना, बहुत ज्यादा चिढ़ने लगना छोटी छोटी चीजों पे। स्ट्रेस, फ्रस्ट्रेशन, स्ट्रेस और फ्रस्ट्रेशन तो हर किसी को होती है ना? अगर हम ये कहते हैं कि हम मेंटली हेल्दी है, दैट डजंट मीन कि हमें स्ट्रेस नहीं है, दैट मीन्स कि वी आर एबल टू हैंडल।
तो ऐसा कोई नहीं होता जिसको स्ट्रेस फ्रस्ट्रेशन नहीं होती, एंजाइटी नहीं होती. द थिंग इज एट द एंड ऑफ द डे दे आर एबल टू हैंडल. यस, इंटरेस्ट ना लेना मैम. हाँ, इंटरेस्ट, लैक ऑफ इंटरेस्ट. यस, वेरी गुड. और कोई बताएगा? यस. फेशियल एक्सप्रेशन होते हैं हमारे जो मैम शो करते हैं मतलब कि स्ट्रेस में आप बंदा है नहीं. मैम जैसे कोई पर्सन स्ट्रेस में होता है तो मैम अच्छे से नींद नहीं ले पाते हैं. Yes. तो मैम कि हमसे दिखता है कि स्ट्रेस में. वेरी गुड. तो लॉस ऑफ स्लीप भी हो सकता है ना, या फिर सोने और खाने के पैटर्न में चेंजेस हो सकते हैं. ज्यादा सोना, कम सोना, ज्यादा खाना, कम खाना. तो बहुत सारे ऐसे वार्निंग साइंस हो सकते हैं बच्चों जो एज अ नर्स आप लोग पहचान सकते हैं और किसी की लाइफ बचा सकते हैं. ठीक है. तो अगर अब हम एग्जाम की बात करें तो वार्निंग साइंस अगर आप अपने एग्जाम में लिखोगे तो 2-3 कैटेगरीज में डिवाइड करके लिख सकते हो. फिजिकल, बिहेवियरल, इमोशनल, वर्बल, इस तरीके से. ठीक है. तो जैसे कि अभी हम देख रहे हैं सामने कुछ वार्निंग साइंस हैं. अगेन जैसे आप लोगों ने बच्चों ने बताया, विथड्रॉन बिहेवियर, सबसे अलग हो जाना, सबसे अलग रहने लगना. एक ऐसा बच्चा जो सबसे घुल मिल के रहता था, है ना, बहुत अच्छे से बातचीत करता था, धीरे धीरे उसके बिहेवियर में चेंज आ गया कि वो धीरे धीरे विथड्रॉन होने लगा, चिड़चिड़ा होने लगा. और क्या हो सकता है? अनएक्सप्लेन्ड फिजिकल सिम्टम्स, जैसे कि वीकनेस मैम. वो हेल्दी है लेकिन वो बॉडी उसकी वीकनेस वीक है, फटीग है, वो फिजिकली लाइफ में वेरी गुड. कोई भी ऐसे यस मैम दर हेडेक रहने लगता है. डिप्रेशन मतलब एंजाइटी वगैरह, चिंता वगैरह होने लगती है. तो ऐसे फिजिकल सिम्टम्स की सर में दर्द रहना, थकान रहना, ठीक है, बैक एक रहना, जो कि किसी भी डॉक्टर को दिखाने जाएगा पेशेंट, है ना, डॉक्टर ने देखा, इन्वेस्टिगेशन किया, लैब रिपोर्ट्स आए, असेसमेंट किया, बट कोई भी फिजिकल प्रॉब्लम निकल के नहीं आई, कोई भी कॉज निकल के नहीं आया. दिस ऑल्सो कैन बी वन थिंग, है ना. और क्या हो सकते हैं? कुछ वर्बल साइंस होते हैं. क्या होते हैं? वर्बल साइंस. अगर कोई ये बोल रहा है कि मैं जीना नहीं चाहता हूँ, मैं मरना चाहता हूँ, ठीक है, तो क्या एक ये वर्बल साइन है? क्या ये एक वार्निंग साइन है? हो सकता है ना, इट कैन बी अ वार्निंग साइन. और क्या क्या लिखा है? मेरी कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, मैं थक चुका हूँ इस जीवन से, है ना, कोई मेरी हेल्प नहीं कर सकता, यह सब खत्म हो गया. मान लीजिए एक बच्चा है जो कि पढ़ाई में ठीक ठाक है और वो फेल हो गया. अब उस फेलियर के बाद अगर वो ये सोचने लगे कि सब खत्म हो गया, है ना, कि अब सब खत्म हो गया, अब कुछ नहीं हो सकता, अब कोई मेरी हेल्प नहीं कर सकता, कोई मुझे प्यार नहीं करता, मेरी कोई वैल्यू नहीं रहती है. तो ये कुछ ऐसी चीजें होती हैं, ऐसे साइंस होते हैं जिनको हमें आइडेंटिफाई करना जरूरी है. ठीक है. आपने पढ़ा होगा बेक्स कॉग्निटिव ट्रायड. कॉग्निटिव ट्रायड 3 सिम्टम्स हैं जो बहुत जरूरी है आपको किसी डिप्रेसिव पेशेंट में पहचानने के लिए. दैट इज, पता है, मुझे पता है आप लोगों को, यू नो इट. क्या है 3 सिम्टम्स? होपलेसनेस, सेकेंड हेल्पलेसनेस, थर्ड बर्थलेसनेस. helplessness, hopelessness and worthlessness. Negative thoughts about oneself, about the others, the environment and the future. तो ये 3 चीजें जरूर जाननी जरूरी है. कुछ फिजिकल साइंस जिनके बारे में हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं. पर्सनल हाइजीन, अपने रोजमर्रा के काम को नेग्लेक्ट करने लगना. जो रोज के काम हैं जैसे कि ऑफिस आना, कॉलेज आना, स्कूल आना, ये सब धीरे धीरे अफेक्ट होने लगते हैं. चिड़चिड़ा होने लगना, अनएक्सप्लेन्ड फिजिकल सिम्टम्स, इसके हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं. और मूड बदल जाना, मूड सडनली चेंज हो जाना. अब मान लीजिए एक बच्चा है जो कि काफी टाइम से ना बहुत विड्रॉन बिहेवियर दिखा रहा है, मतलब सबसे अलग होने लगा है, बातचीत ज्यादा करता नहीं है, उदास रहने लगा है, इरिटेटेड. जैसे आप उससे कोशिश करो बात करने की कि भाई क्या हुआ है, तो वो बहुत जल्दी गुस्सा दिखा रहा है और इरिटेट हो रहा है. ओके, ठीक है, समझ रहे हो सिनेरियो? नेक्स्ट डे वो आता है और बहुत खुश है, वेरी हैप्पी. सो इज दिस अ वार्निंग साइन? इज दिस अ वार्निंग साइन?
सडन चेंज ऑफ मूड इज अ वार्निंग साइन. ओके, ऐसा नहीं है कि वो उदास ही होगा, क्या पता वो बहुत लंबे समय से उदास चल रहा है और सडनली वो बहुत खुश होकर आता है. दैट कैन ऑल्सो बी अ वार्निंग साइन. यहाँ तक समझ में आया बच्चों? वेरी गुड. तो एक छोटा सा गेम खेलें. गेम का नाम क्या है? मिथ वर्सेस ऑन सुसाइड. ठीक है, अब मैं चाह रही हूँ हमारे पीछे में उधर में बच्चे बैठे हैं, वो भी थोड़ा सा पार्टिसिपेट करें. मैं एक एक स्टेटमेंट यहाँ पे दिखाऊंगी, आपको अपना हैंड रेज करना और बताना है कि वो मिथ है या फैक्ट है. जिसको मैं बोलूंगी वो आंसर देगा और आंसर सही होगा तो यू विल गेट अ कैंडी. ठीक है, चले खेलें. सुसाइड वोंट एक्चुअली डू. जो लोग बात करते हैं सुसाइड के बारे में वो सुसाइड नहीं करते, ऐसे ही बोल देते हैं. रेज योर हैंड्स. इज इट अ मिथ और फैक्ट? ये एक मिथ है मैम, क्योंकि अभी हमने पढ़ा कि वर्बल वार्निंग साइंस होते हैं, जैसे कि उसमें से ही एक हो सकता है हमारा अगर कोई पर्सन जो है सुसाइड के बारे में बात कर रहा है तो ये मतलब हो भी सकता है कि वो सुसाइड अटेम्प्ट कर ले. ओके, सो क्या है? इट इज अ मिथ. वेरी गुड. गुड बच्चे, वेरी गुड. तो अब फैक्ट क्या होगा? फैक्ट क्या होगा? ये तो मिथ हुआ ना, तो फैक्ट क्या हुआ? फैक्ट ये हुआ कि जो लोग सुसाइड करते हैं या सुसाइडल अटेम्प्ट जो करते हैं वो इसके बारे में बात कर चुके होते हैं कभी ना कभी और अच्छा खासा एक प्लान बना चुके होते हैं. ठीक है, तो अगर हम मिथ्स और फैक्ट्स के बारे में बात कर रहे हैं तो आपको ध्यान रखना है, इससे एक मैसेज लेके जाना है. अगर कोई बोल रहा है तो उसको इग्नोर नहीं करना है. ठीक है, चलिए नेक्स्ट. आस्किंग अबाउट सुसाइड पुट्स द आइडिया इनटू समवन्स हेड. अगर आप किसी से पूछोगे कि क्या तुम्हारे दिमाग में मन में ऐसे ख्याल आते हैं कि अपने आप को हर्ट करने के या अपने आप को नुकसान पहुंचाने के, तो क्या ये मतलब ऐसा कहने से, ऐसा पूछने से आप उसके दिमाग में सुसाइड के आइडियाज डाल दोगे? इज इट अ मिथ और फैक्ट? रेज योर हैंड्स और आई विल स्किप दिस. Yes. यस, पीछे जो यस. And this is a fact because मैम मतलब हम उनको एजुकेट कर रहे हैं उस चीज के लिए कि मतलब कुछ बातें ऐसी बताएंगे जो हमें ठीक भी लगेगी मैम, क्योंकि इसके बाद वो उस तरफ जा सकते हैं सुसाइड की तरफ. ओके, ठीक है, बैठ जाओ. और कोई बोलेगा? रेज योर हैंड्स. ओके, ठीक है, फाइन. सो द स्टेटमेंट इज कि अगर आप सुसाइड के बारे में किसी को पूछते हो, कोई परेशान है काफी समय से और आपको लग रहा है कि इसके साथ कुछ दिक्कत है और आप उसको पूछते हो कि क्या तुम्हारे मन में ऐसे विचार आते हैं कि अपने आप को नुकसान पहुंचाओ, तो क्या ऐसा पूछने से आपने उसके दिमाग में सुसाइड का जो आइडिया है वो डाल दिया? ऐसा कुछ होता है क्या? रेज योर हैंड्स. ये सब सिचुएशन पे डिपेंड करता है. सच्ची बात है. यस. ये क्योंकि ऐसे तो हार्ट डिजीज कंडीशन के बारे में हम बात करते हैं जरूरी थोड़े है कि अगर हम किसी से डिप्रेशन की बात कर रहे हैं तो मतलब बंदा जो है डिप्रेस हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं, क्योंकि इंसान का खुद का भी सेंस होता है. ठीक है, ओके, सिट डाउन. बेटा आपने क्या बोला था? यस. Okay, so this is a myth. This is a myth. Yes, आपने सही बोला. Very good. आ जाओ आगे. अभी मैं एक्सप्लेन करूंगी क्यों है ये myth. ओके, ये मिथ इसलिए है पेशेंट्स के साथ स्पेशली, तो ये आपको बताया जाता है, समझाया जाता है, ये सुसाइडल असेसमेंट में आता है. कैसे करोगे आप असेस जब तक आप पूछोगे नहीं पेशेंट से? और ऐसा नहीं है कि अगर आपने पूछा तो आपके ने उसके दिमाग में वो आइडिया पुट कर दिया. नो,
ओके, सो द फैक्ट इज कि आपको पूछना पड़ेगा, और पूछने से आप किसी के दिमाग में आइडिया नहीं डाल सकते हो। ये तो वही बात हुई ना कि मान लीजिए कोई किसी का कोई बहुत कोई मान लीजिए वॉलेट रखा है, किसी का वॉलेट रखा है, कोई है नहीं वहाँ पे, और कोई मुझे बोले कि इस वॉलेट को उठा लो, तो क्या मैं उठा लूंगी? मेरे दिमाग में उसने वो आइडिया थोड़ा ना पुट किया है ना। तो इट इज अ मिथ। जब भी आप अपने पेशेंट्स के साथ काम करते हैं, डिप्रेसिव सुसाइडल आइडिएशन को जानने के लिए, असेसमेंट के लिए आपको पूछना पड़ेगा डायरेक्ट क्वेश्चंस कि क्या आपके मन में ऐसे विचार तो नहीं आते हैं। डायरेक्ट क्वेश्चन शुड बी देयर। ओके, नेक्स्ट वो सामने अपने आप प्रोजेक्ट हो ही गया है, चलिए कोई नहीं, आई रीड इट। सुसाइड ओनली हैपेंस इन पीपल विद मेंटल इलनेस, ये हमने स्टार्टिंग में डिस्कस कर लिया है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ मेंटली इल में ही सुसाइडल थॉट्स होंगे, किसी में भी हो सकते हैं, जनरल पब्लिक में भी हो सकते हैं। ओके, सुसाइड अकर्स विदाउट वार्निंग, इट इज ऑलरेडी प्रोजेक्टेड, कोई बात नहीं, चलो हम डिस्कस करते हैं। सुसाइड अकर्स विदाउट वार्निंग, क्या है ये? इट इज अ मिथ, क्योंकि अभी हमने वार्निंग साइंस डिस्कस किए हैं। सुसाइड बिना वार्निंग के नहीं होती है। देयर आर सम वार्निंग साइंस जो मोस्ट ऑफ द टाइम दिस हैपेंस विद वार्निंग साइंस। ओके, नाउ नेक्स्ट इज इफ समवन रियली वांट्स टू डाई, नथिंग कैन स्टॉप देम। इट इज अ मिथ कि अगर किसी ने ठान ही लिया है तो उसको कोई रोक नहीं सकता। क्या ऐसा हो सकता है? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। राइट टाइम पे, राइट इंटरवेंशन पे यू कैन सेव दैट पर्सन। हो सकता है ना ऐसा? यस। नेक्स्ट, इफ समवन्स मूड इम्प्रूव सडनली, दे आर नो लॉन्गर सुसाइडल। अगर किसी का मूड अचानक से ठीक हो गया है तो वो सुसाइडल नहीं है। अब क्या ऐसा होता है? नहीं होता है, क्योंकि सडन मूड चेंज हमने अभी देखा, इट इज अ वार्निंग साइन। दिस माइट मीन they have already decided what to do. Now coming to the last part which is very important, that is role of nurse. चलो इसको मैं स्लाइड बाय स्लाइड नहीं जाएंगे, इसको तुम लोग कवर करोगे। बताओ रोल ऑफ नर्स क्या हो? यस, क्लाइंट है हमारा, हमें वो नर्स क्या करेगी, उसकी बात को अच्छे से समझेगी, एम्पैथी शो करेगी, कॉन्फिडेंशियलिटी शो करेगी। अगर वो कोई बात बता रहा है तो ऐसा नहीं है कि वो जाकर सब में बता देगी, क्या है उसे ट्रस्ट गेन करेगी उसका एक अच्छी कम्युनिकेशन के थ्रू, और फिर क्या है उसे एडवाइस करेगी कि क्या क्या उसे अपनी लाइफ में करना है, और जो भी एरर उसे दिखाई दिए तो क्या करेगी, उनको सजेस्ट करेगी कि किस तरीके से उस स्ट्रेस से उसे कॉप अप करना, कॉप अप स्ट्रेटजीज क्या है नर्स उसको बताएगी। वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। आप भी आ जाओ। हमारा मिथ वाला गेम तो ऐसे रह गया ना बीच में। ठीक है, तो निगर ने क्या क्या बताया? क्या क्या बताया भाई? आप लोग पास बैठे थे। लाइफ ट्रीटमेंट काउंसलिंग करके उसे एजुकेशन प्रोवाइड करके उसे टचिंग कर सकते हैं। बता सकते हैं कि नर्स है, उसका रोल ये है कि उसको उस हॉस्पिटल में ही मतलब अपना काम करना है। नर्स का रोल है पूरी सोसाइटी को ध्यान में रखे चलो, उसे अगर कहीं भी किसी में भी साइलेंट ट्रीटमेंट आदमी दिख रहे हैं तो उसे एजुकेशन प्रोवाइड करना, उसकी काउंसलिंग करना, उसे बताना उसकी लाइफ के लिए इम्पोर्टेंट है। वेरी वेरी गुड। और कोई बोलना चाहेगा पीछे जो बच्चे? यस प्लीज। You can come here and take this mic. पीछे हो। इससे हमारा मेन रोल ये रह सकता है कि अगर कोई पर्सन सुसाइडल थॉट लेके हमारे पास आता है और हमें पता चलता है कि हाँ ये सुसाइड कर सकता है, तो उसे पहले हमें सबसे अवेयर करना है कि उसकी लाइफ से जो है उसकी नहीं है, उस पर तो उसके माँ बाप, उसके भाई बहन का भी हक है। वो सपने, अगर वो सुसाइड करता है तो वो सपने भी साथ उसके टूट जाएंगे जो उसके माँ बाप ने उससे लगा रखे हैं। सभी उम्मीदें खत्म हो जाती है, और ये बातें हमें उसे स्टेप बाय स्टेप समझानी होती है कि ये लाइफ सिर्फ तुम्हारी नहीं औरों की भी है।
पहली चीज क्या है, वार्निंग साइंस को पहचानना। सबसे पहले तो आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, असेस करना पड़ेगा, है ना। वार्निंग साइंस पहचानोगे और लिसन ऑल ऑफ यू प्लीज, जस्ट 2 मिनट और, हाँ 2 मिनट और स्पेशली जब डिप्रेसिव पेशेंट्स हमारे वार्ड में एडमिटेड होते हैं तो हमें क्या कहा जाता है, वी डू नॉट हैव टू लीव देम विदाउट सुपरविजन। हमें उनको कांस्टेंट सुपरविजन में रखना है ना, रखना है ना। तो जब भी वार्ड में कोई ऐसा पेशेंट है जिसका हमें पता है कि सुसाइडल आइडिएशन हो सकते हैं, तो उसको असेस करना है, उसको कांस्टेंट सुपरविजन में रखना है, सेफ एनवायरनमेंट देना है, और क्या क्या करना है, हमेशा उस पर नजर होनी चाहिए, चाहे नर्सेस की या उसके फैमिली मेंबर्स, कोई तो उसके साथ में होने चाहिए। उसका एनवायरनमेंट बिल्कुल सेफ होना चाहिए। टाइम टू टाइम अगेन असेसमेंट, अगेन काउंसलिंग, फाइन। सो वी विल क्विकली गो थ्रू द स्लाइड्स। अर्ली आइडेंटिफिकेशन हो गया, थेरेप्यूटिक रिलेशनशिप इज वेरी मच नेसेसरी, है ना। एक ट्रस्ट बिल्ड करना, अभी बच्चे ने बोला था ट्रस्ट बिल्ड करना बहुत जरूरी है। जब तक ट्रस्ट बिल्ड नहीं करोगे तब तक पेशेंट्स या कोई भी आपको कोई कुछ चीजें नहीं बताएंगे। प्रोवाइडिंग सपोर्ट, ओके। क्राइसिस इंटरवेंशन मतलब अगर सुसाइड अटेम्प्ट के बाद आया है या अगर अटेम्प्ट कर लिया है ना, तो उस टाइम पे आप किस तरीके से इंटरवेंशन कर सकते हो। अगर किसी कम्युनिटी एरिया में है, आपके आसपास के कम्युनिटी एरिया में, तो रेफरल एंड कोऑर्डिनेशन, एजुकेशन एंड प्रिवेंशन, जो कि आज हम थोड़ा सा कर भी रहे हैं। ओके फाइन, सो दैट्स ऑल बच्चों। In the end, 5 action steps for helping someone in emotional pain. अब ये हम बात कर रहे हैं जो आप अपने लेवल पे अभी कर सकते हो, क्योंकि जो आप लोग हो ना बेटा, यूथ इस टाइम पे वो ज्यादा एक्सपोज्ड हो चीजों को लेके, हर तरीके से एक्सपोज्ड हो, और एक्सपोज्ड हो तो स्ट्रेस ज्यादा है, और इमोशनली आप लोग बहुत ज्यादा काइंड ऑफ इम्बैलेंस्ड है ना, इमोशनली इम्बैलेंस्ड हो क्योंकि बहुत चीजों से एक्सपोज्ड हो। तो क्या चीजें आप कर सकते हो अगर आपको कोई लगता है अपने आसपास डिस्टर्ब, क्या कर सकते हो? आस्क, बोलो मेरे साथ, आस्क। सेकंड, कीप देम सेफ। थर्ड, बी देयर। फोर्थ, हेल्प देम कनेक्ट। एंड लास्ट, स्टे कनेक्ट। ठीक है, अगर आपको लग रहा है कोई विड्रॉल है तो उसके साथ रहो। ओके, समझ में आया? यस मैम। थैंक यू सो मच। Ma'am, it's such a wonderful stress relieving session. Your words truly calmness and positive to us. Thank you so much. So we have one more esteemed guest on this day. So with great respect and enthusiasm, let us welcome Dr. Aditya Gupta sir. Thank you so much for joining us. Give a huge round of applause to Dr. Aditya Gupta sir. Thank you so much. Now I would like to request sir, please come upon stage to accept the token of love from Arogyam family, and I request to our principal ma'am, please give the huge token of love to Dr. Aditya Gupta sir. Thank you so much, sir, to join us today. Thank you very much. Now I would like to request to Mrs. Seetal ma'am, please come upon the stage to address our esteemed guests. Dr. Aditya Gupta sir is an MBBS and MD in neuropsychiatrist. He is a visiting psychiatrist in IIT Roorkee Hospital and City Hospital Haridwar. He is practicing at Roorkee Brain Care Center at New Nehru Nagar, Roorkee. He has completed his MBBS from Pandit Jawaharlal Nehru Memorial Medical College, Raipur in 2004. He has also completed his MD from Dr. SN Medical College, Jodhpur in June 2014. He has participated in various CME and national conferences such as Annual National Conference of Biological Psychiatry held at Agra in September 2019. And ANCIPS held at Kolkata in June 2020, and also in ANCIPS held in Hyderabad in January 2025. He has also published paper presentations. He has also done a paper presentation in national conferences, one of which is presentation of a paper which was been titled as a psychological well-being and daily
parenting stress among parents of the children with psychiatric disability at annual national conference of IPS-NZ held at New Delhi in October 2013. Sir has also published articles in national and international journals. Sir is also a member of voluntary committees and public health departments. He has also a great deal of experience in management of chronic patients. He also has been a keen interest in a neuropsychiatrist and sexual medicines, and also a predical towards the research work. So it's an esteemed pleasure to have you among us, sir. Thank you, sir. World Suicide Prevention Day, when we all are here to understand the importance of mental health and value of life, the presence of our guest is truly meaningful. So now I would like to request Dr. Aditya Gupta sir, please join the stage and give the importance of mental health in life. Please give a round of applause to Dr. Aditya Gupta. Good afternoon everyone. First of all, thank you for inviting me. ज़्यादातर सारे पॉइंट्स मैडम ने ऑलरेडी कवर कर दिए हैं, तो कुछ ज़्यादा मेरे पास बताने के लिए बचा नहीं है। कुछ चीज़ें बताना चाहूँगा यहाँ पर। मेंटल हेल्थ को लेके बहुत सारे मिथ्स हैं सोसाइटी के अंदर। लाइक ऐसा कहा जाता है कि एक व्यक्ति टेंशन लेता है तो वो बीमार पड़ जाता है। सोच रहे हो तुम ज़्यादा, सोचो मत, कुछ प्रॉब्लम नहीं हो रही है, तुम्हें अच्छा सोचोगे सब कुछ सही हो जाएगा। तो ये बहुत ही बड़ी मिथ है, ऐसा कुछ नहीं होता। ये ऐसा ही है जैसे कि कोई अस्थमैटिक पेशेंट है और आप उसको कह रहे हैं अरे आसपास कितनी ऑक्सीजन है, क्यों नहीं आप ले पा रहे हो, क्या जरूरत है आपको इनहेलर लेने की, ट्रीटमेंट की, अच्छा सोचो ना सही हो जाओगे। तो जब वो सही नहीं हो सकता तो वैसे ही कोई साइकेट्रिक पेशेंट है वो भी विदाउट ट्रीटमेंट सही नहीं हो सकता है, क्योंकि उसके अंदर भी ब्रेन की इश्यू है, ब्रेन की पैथोलॉजी है, जिस कारण से वो ऐसा प्रेजेंट कर रहा है। दूसरा ये भी था मेंटल हेल्थ को लेके कि ज़्यादातर जो उसका ट्रीटमेंट होता है, मेडिसिन होती हैं, वो सेडेटिव्स होती हैं, कुछ नहीं होता है, बस डॉक्टर ने नींद की दवाई दे दी है, सुला दिया है, अब इसकी आदत पड़ जाएगी। तो ये एक सच बात नहीं है। अगर आप देखें कोई भी ऑर्गन होता है उसमें कई तरह की पैथोलॉजी होती है और कई तरह का ट्रीटमेंट होता है। तो ब्रेन की मेडिसिन का मतलब ये नहीं है सिर्फ कि नींद की दवाई दी है, वो कई मल्टी मोडेलिटी ऑफ एक्शन से काम करती हैं और वो एडिक्टिव नहीं होती है। होता है कि कई बार जो इलनेस होती है वो बड़ी क्रॉनिक होती है, उनका लाइफ टाइम ट्रीटमेंट चलता है। तो अगर ऐसा हम कहें तो हम ये भी कह सकते हैं कि किसी पेशेंट को डायबिटीज़ है तो लाइफ लॉन्ग मेडिसिन खा रहा है, इसका मतलब उसको उसकी आदत पड़ गई है। जब वो ट्रू नहीं है तो यही चीज़ ब्रेन के बारे में भी ट्रू नहीं है कि अगर वो लॉन्ग टर्म मेडिसिन खा रहा है तो उसको उसकी आदत पड़ गई है, या फिर मेडिसिन खाने से वो फर्दर उसके ब्रेन को हार्म हो जाएगा। तो एक दूसरे मिथ है। बाकी आज सुसाइड प्रिवेंशन डे के बारे में हम बात कर रहे हैं, तो ऐसा पाया गया कि हर 40 सेकंड में एक व्यक्ति सुसाइड करता है। तो जो सुसाइड वो करता है तो ना सिर्फ उसका हार्म होता है बल्कि पूरी सोसाइटी का हार्म होता है, पूरी फैमिली सफ़र करती है, सोसाइटी सफ़र करती है कि एक इम्पोर्टेंट एसेट हमने खो दिया। तो जैसा मैडम ने बताया कि कुछ वार्निंग साइंस हैं जिनके द्वारा हम पहचान सकते हैं कि कोई व्यक्ति है तो वो क्या सुसाइडल है, क्या उसको डिप्रेसिव इलनेस। यहाँ पे मैं एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा कि ना सिर्फ डिप्रेसिव इलनेसेस में बल्कि कुछ साइकोटिक स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर भी होते हैं जिनमें कि पेशेंट सुसाइड कर सकता है। वहाँ वो ऐसा प्रेजेंट करता है कि हेलुसिनेशंस उसको होती है, ऑडिटरी हेलुसिनेशंस, एंड द वॉइसेस आर कमांडिंग कि यू शुड बेटर बी डेड, एंड वो उसको फॉलो करके सुसाइड करता है। ये तो बिसाइड्स द डिप्रेसिव इलनेसेस, साइकोटिक स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर आर आल्सो कॉज ऑफ सुसाइड। इसके अलावा सब्सटेंस अब्यूज, अल्कोहलिक, ओपिएट अब्यूज, इन सब जिन पेशेंट्स को होता है उनमें भी जो सुसाइड का रिस्क है वो बढ़ जाता है। अब बात आते हैं इंटरवेंशन लेवल पे। अब कोई पेशेंट हमारे पास में आया जो कि सुसाइडल है, तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले हमें ये असेस करना है कि जो उसके सुसाइडल थॉट्स है, क्या वो एक्टिव सुसाइडल आइडिएशन है, पैसिव है, वो उस पर क्या एक्ट करना चाह रहा है। जैसे मैडम ने बताया कि अगर आप उस पेशेंट से बात करते हैं सुसाइड के बारे में तो ऐसा नहीं होगा कि वो और सुसाइड के लिए सुसाइड करने के लिए कोशिश करेगा, उल्टा उसको एक वेंटिंग आउट वाला फिनोमिनन होगा और उसको बेटर फील होगा। फिर आप इसको असेस करना है कि क्या आप अभी एट करंट सिचुएशन कोई सुसाइडल प्लान आपके मन में है। अगर सुसाइडल प्लान है तो आप कैसे एक्ट करेंगे उसके ऊपर, कि आपने कुछ सोचा हुआ है कि लाइक आपके पास में कोई गन ली है या कोई पॉइजन आपने लिया है, किस तरह का आपने मेथड किया है। और कोई पेशेंट बिल्कुल एक्टिव प्लान है, उसके पास में बता रहा है कि मैंने सोचा है कि मैं पंखा है उससे फांसी लगा लूँगा और मैंने उसके लिए सामान भी कर दिया है, मैंने अपनी विल वगैरह भी बना दी है। तो इसका मतलब है सुसाइडल आइडिएशन वो एक्टिव है और हमें बहुत ही एक्टिवली उस पर काम करना पड़ेगा। इस तरीके से हम एसेस कर सकते हैं। देन सेकंड स्टेप इज हार्म रिडक्शन। हार्म रिडक्शन का मतलब ये है कि इस पेशेंट
जिस वार्ड में या जिस रूम में वो एडमिट है वहाँ कोई भी ऐसी चीज़ नहीं होनी चाहिए जो कि हार्मफुल हो, लाइक कोई शार्प ऑब्जेक्ट ना हो वहाँ पर, मेडिसिन की क्वांटिटी इस तरह की ना हो कि वो ले और वो सुसाइड कर सके। देन मेडिसिन इंटेक शुड बी सुपरवाइज्ड। हमें कुछ जाना है, सुबह की मेडिसिन, दोपहर की मेडिसिन, शाम की मेडिसिन उसको अपने हाथ से देनी है। क्योंकि कई बार क्या होता है कि पेशेंट जो होता है जब इनिशियली ट्रीटमेंट चलता है तो पहले क्या था, सुसाइडल एडिशन तो पहले भी थे बट फटीग भी था, तो वो अपनी सुसाइडल एडिशन पे काम नहीं कर पा रहा था। लाइक हाँ मेरे को मरना है बट अभी हिम्मत नहीं हो रही है, बाद में कर लूँगा। तो हमने जब उसको ट्रीटमेंट दिया तो जो फटीग था वो तो चला गया बट आइडिएशन नहीं गया, तो उस समय पे रिस्क जो होता है वो बढ़ जाता है सुसाइड का। तो हमें इसलिए क्या करना है कि मेडिसिन जो है सुपरवाइज देनी है ताकि ऐसा ना हो कि पेशेंट्स की ओवरडोज कर ले। दूसरा इंपॉर्टेंट स्टेप ये है। तीसरा है उसको मोटिवेट करना कि आपको ये ट्रीटमेंट लंबे समय तक कंटिन्यू करना है। जो ट्रीटमेंट है ये दो तरीके का हो गया। एक तो हो गया साइकोथेरेपी। साइकोथेरेपी में कई तरह की थेरेपीज रहती हैं, लाइक कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी हो गई, आपकी इंटरपर्सनल थेरेपी हो गई, या फिर ट्रॉमा बेस्ड थेरेपी हो गई। और साथ ही साथ में मेडिकेशन, जो कि डिपेंड करता है पैथोलॉजी क्या है। लाइक अगर डिप्रेशन है तो डिप्रेशन के हिसाब से, अगर साइकोटिक स्पेक्ट्रम लाइक स्किज़ोफ्रेनिया या बाइपोलर डिसऑर्डर साइकोटिक सिम्पटम्स का तो उसके हिसाब से। तो इंटरवेंशन एंड फॉलो ये दोनों चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ज़्यादा लंबा ना खींचते हुए मैं इस चीज़ से ऐड करूँगा कि मेंटल हेल्थ इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट जस्ट लाइक फिजिकल हेल्थ। बल्कि आप इसको ये मत मानिए कि कोई साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट है, आप ये मानिए कि ब्रेन भी एक बॉडी का ही पार्ट है। जैसा हार्ट हमारा बीमार पड़ सकता है तो ब्रेन भी बीमार पड़ सकता है। और ब्रेन बीमार पड़ने का मतलब ये नहीं है कि आपने सोचने समझने की शक्ति चली गई है, आप पागल हो गए हैं, सॉपर्ट स्लैंग भाषा में, ठीक है। ब्रेन में बीमारी है तो कई तरह की बीमारी हो सकती है। डिप्रेशन है तो उसका मतलब कॉग्निटिव एबिलिटीज चली जाएंगी। साइकोटिक स्पेक्ट्रम हो सकता है, ओसी स्पेक्ट्रम हो सकता है, इम्पल्सिव कंपल्सिव स्पेक्ट्रम हो सकता है, और ऐसे कई सारी के सब इसमें करीबन हमारी 100 तरह की बीमारियां जो हो सकती है। और हर बीमारी में कॉग्निशन चला जाना, डिसीजन मेकिंग चला जाना ऐसा जरूरी नहीं है, ठीक है। तो मिथ से दूर होके हमें आसपास अपने जो भी लोग हैं उनको मोटिवेट करना है कि अगर आपको कोई ब्रेन की प्रॉब्लम है तो आप अपना ट्रीटमेंट ऐसी सीख करें जैसे कि आप अन्य फिजिकल सॉपर्ट फिजिकल इलनेसेस के लिए करते हैं। इसी के साथ मैं आई थिंक लीव लेता हूँ। थैंक यू फॉर मी। A heartfelt thank you for your time, knowledge, thoughts and wisdom. Thank you so much. Now with immense pride and deep respect, I invite our beloved principal ma'am to kindly come on the stage and enlighten this session and word of... Thank you, Akansha ma'am. First of all, the topic is very important. हम पढ़ रहे हैं सुसाइड प्रिवेंशन डे। हमें लिए ऐसे ही लग रहा है, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं आज सुसाइड के बारे में तो पढ़ रहे हैं, क्या करना है हमें थोड़ी ना करना है, क्या है। That is not about the topic. That is about your psychology. Being a nurse, आपको हम यहाँ सिखा रहे हैं कि सुसाइड के थॉट्स जिसको आते हैं, ठीक है, तो आप उसको असेसमेंट कैसे करोगे, मिथ कैसे आप देखोगे, फैक्ट कैसे पता करोगे। बिकॉज आप लोग सब कहाँ पर हैं, कम्युनिटी में हैं, हॉस्पिटल में है, डे बाय डे आप लोग कितने लोगों से मिलते हैं। मॉर्निंग में जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो हॉस्पिटल जा रहे हैं, ठीक है, डे बाय डे हर दिन अलग अलग पेशेंट से मिलते हैं, अलग अलग डिसीज से मिलते हैं, अलग अलग रिलीजन से मिलते हैं, अलग अलग सिचुएशन से मिलते हैं, इंटरेक्शन हो रहा है आपका। तो आपको ये असेसमेंट करना है। असेसमेंट ऐसे ही बुकिश नहीं आता। पहली चीज आप बुक जितना भी बुक का कर लो। मैं सर को भी थैंक यू बोलूँगी, सर ने भी बहुत प्रैक्टिकली एस्पेक्ट से उन्होंने आप लोगों को डिलीवर किया लेक्चर एंड चेतना मैडम से भी मैं थैंक यू बोलूँगी बिकॉज मैडम ने बहुत सारी चीज़ें जो है प्रैक्टिकली नॉलेज उन्होंने आप लोगों को बताई। बुक में बहुत कुछ दिया है, जब आप पढ़ने बैठेंगे बुक में बहुत कुछ दिया है, बहुत बड़े बड़े टॉपिक, जैसे आज सावन सर की क्लास ले रहे थे, एक टॉपिक ही इतना बड़ा है जिसपे हम आधे घंटे बोल सकते हैं। बट यहाँ पर बात आ रही है ह्यूमैनिटी की, सुसाइड। आप जितने बैठे हैं अगर आपका असेसमेंट इज गुड तो आप बहुत लोगों की जान बचा सकते हैं। और बीइंग ए प्रोफेशन आपको लोगों को मोटिवेट करना है, मोरल सपोर्ट देना है, साइकोलॉजिकल सपोर्ट देना है, ठीक है, असेसमेंट करना है कि किसकी टेंडेंसी क्या हो रही है। ऐसा नहीं है अबाउट द सुसाइड, जैसे कि अभी मॉर्निंग लेक्चर में भी हम कर रहे थे कि डिप्रेशन होता है, एंजाइटी आती है, एंजाइटी धीरे धीरे डिप्रेशन में कन्वर्ट होती है, डिप्रेशन के बाद फिर आप कुछ और इश्यूज होता है, फिर वो चेंज होता है सुसाइड थॉट्स में। अब आपको सपोज अगर हम सुसाइड की यहाँ पर बात की है, कल को कोई बच्चा आएगा, मैम मुझे बहुत टेंशन हो रहा है और मैं सुसाइड कर लूँगा,
ठीक है, अब हमारे लिए बात है भाई अभी तो कल तो ये टॉपिक पढ़ा था और अब तो सुसाइड बिकॉज उसको नॉलेज हो गया है। तो आज का जो प्रेजेंट सिनेरियो है इसमें स्टूडेंट, आम जनता और अदर ऑडियंस सब अवेयर है। सोशल मीडिया ने इतनी धमाल मचा रखी है, नेगेटिव पॉजिटिव सब चीजों में। अभी आपने देखा हुआ चीन में भी, सॉरी नेपाल में भी सोशल मीडिया को बैन कर दिया, तो वहाँ की जो यंग जनरेशन है उन्होंने कितना क्या किया हुआ है। तो ये होती है, डिपेंड होती है सब आपके एटीट्यूड, आपके मेंटल स्टेटस। अगर आप मेंटल हेल्दी नहीं है तो डेफिनेटली होगा सुसाइड। हम प्रिवेंशन की बात कर रहे हैं, तो ये प्रिवेंशन आप लोगों के लिए जस्ट एक अवेयरनेस प्रोग्राम है। ये आप लोगों के लिए तो है, बिकॉज आपको जजमेंट करना है, आपको असेसमेंट करना है, आपको खुद मेंटली हेल्दी रहना है। कई बार ऐसा होता है हम खुद मेंटली हेल्दी नहीं है, आप अपने आप को कभी एनालिसिस करना, जो भी मेंटल हेल्थ असेसमेंट आप लोग ने पढ़ चुके होंगे, ठीक है। इवन तो जैसे शिजोफ्रेनिया है ना सर, शिजोफ्रेनिया के कई सिम्टम्स जो होते हैं वो ऐसा लगता है कि ये तो मैं ही कर रही हूँ, है ना। कई ऐसे सिम्टम्स ऐसा लगता है। और एज पर रिसर्च बहुत सारे लोगों को बहुत तरह की मेंटल इलनेस है, बट आइडेंटिफाई कैसे होगा? आइडेंटिफाई जब होगा जब आप फैक्ट पे जाएंगे, मिथ पे जाएंगे, असेसमेंट आपको पता रहेगा। जब किसी के भी बारे में आपको असेसमेंट का नॉलेज नहीं है तो आप असेसमेंट ही नहीं कर पाएंगे। यस, तो क्लास फॉर बोथ स्पीकर। टाइम में हमारे साथ स्पेंड किया, थैंक यू मैडम, थैंक यू सो मच। क्योंकि मैं चाहती हूँ आगे और ऐसा सेशन होता रहे, इंटरेक्टिव सेशन होता रहे, ताकि बच्चों में भी मोटिवेशन हो। और ये जो मैसेज है आज जितना भी आप लोगों ने गैदर किया, अवेयरनेस आप लोगों को मिली है, वो भी आप समाज में, सोसाइटी में अपने पेरेंट के साथ आपको असिस्ट करके उसकी लाइफ को सेव करना है। तो थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। Your words like a therapeutic dose, vaccine of knowledge, and always the antidote of stress. Thank you so much to our esteemed guests. So now I would like to request our esteemed guest, Professor Chetna ma'am, please come upon the stage and accept the token of remembrance from Arogya Nursing family. And I request our principal ma'am, please join the stage and give the token of remembrance. Vansi sir, head of the Department of Community Health Nursing at Arogya Nursing College, please come forward and deliver the vote of thanks. Good afternoon, one and all, and Arogya pranam to you. On behalf of Arogya Medical and Nursing family, it's a proud privilege for me to propose vote of thanks on the special occasion organized on World Suicide and Prevention Day under the theme Changing the Narrative Suicide, Changing the Narrative Changes. And first and foremost, I would like to place my heartfelt thanks to our Honorable Chairman sir, whose dedication, encouragement, guidance, and for providing such a nice and beautiful educational atmosphere so that we can enhance our personal and professional skills. Next, I would like to place my deep gratitude to our respected GN sir, whose work always inspired us to move towards the upper direction. And most important, I would like to place my heartiest thanks and to respected principal ma'am, Professor Namita Krishna ma'am. Without her guidance, without her support and discipline, it would not be possible for us ma'am to achieve this today's session and to create such a nice atmosphere. And lastly, a special note to our special distinguished guest speaker, Dr. Aditya sir and Mr. Chetna ma'am, for sharing their thoughtful insights, knowledge and strategies on the sensitive and important issues. Your words have truly enlightened and motivated all of us to understand and reflect with responsibility towards suicide prevention. Last but not the least, I would also like to thank to our respected staff members, HODs, dear students, non-teaching staff, and all those who have contributed directly or indirectly to organize this event. Once again, thank you. Thank you very much. Now I would like to request our esteemed guests and all the faculty, please come upon the stage.